ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ موسم شدید گرم تھا۔ بارش کے کہیں بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اکا دکا لوگ ہی سڑکوں پر دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ شدید موسم نے سب کو اپنے اپنے گھر میں باندھ کر رکھ دیا ہے۔ شدید حبس محسوس ہو رہا تھا۔ سانس لینا بھی دشوار سا تھا۔ مجھے اپنی مطلوبہ منزل تک جانا تھا۔ میں رکشے کی تلاش میں سڑک تک آ گئی اور تقریباً 10 منٹ اس حبس زدہ موسم میں کھڑے رہنے کے بعد رکشے والا میرے طے شدہ کرائے پر چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں جلدی سے رکشے میں بیٹھی۔ بتائے گئے وقت کے مطابق مجھے ٹھیک 9 بجے پہنچ جانا چاہیے تھا، جبکہ گھڑی 8:45 کا وقت بتا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو ذرا تیز چلانے کے لیے کہا اور سوچنے لگی کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جو وہاں جا کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ میں تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی کہ کبھی رات کو اس وقت گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ آخر کار منزل آ گئی۔ وارڈن نے جو ٹیلر شاپ کا بتایا تھا وہ موجود تھی، لیکن بند تھی۔ میں اس کا بورڈ پڑھ کر برابر والی بلڈنگ میں آ گئی۔ مجھے دوسرے فلور تک جانا تھا۔ کل 6 فلور کی بلڈنگ تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی اور لال گیٹ پر لگی بیل پر ہاتھ رکھا۔ گھنٹی بجی اور اندر سے کوئی بچہ نکلا تھا۔ مجھے اندر ایک کمرے میں بٹھا کر انتظار کا کہا گیا۔ سامنے سے آتی عورت کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، جہاں موجود سامان دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی ہے جذبات کے قتل عام کی۔ یہ کہانی ہے غربت کی۔ یہ کہانی ہے مجبوری کی، بے بسی سے بھرے ایک وجود کی۔ یہ کہانی ہے اس معاشرے کے جیتے جاگتے انسانوں کی۔ یہ کہانی ہے میری، آپ کی اور ہم سب کی۔ میرا نام سوزین ہے اور میں ایک لڑکی ہوں۔ جی ہاں، ایک لڑکی۔ اور اس معاشرے میں ایک لڑکی ہونا ہی بہت بڑا جرم ہے۔ میرے جیسی غریب گھر میں آنکھ کھولنے والی ہر لڑکی کا یہی جرم ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں، لیکن ہائے رے قسمت کہ بری قسمت تو ہیروں کو بھی رول دیتی ہے۔ اس کہانی کی شروعات میری سادہ لو امی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے اسے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ عظمت صاحب کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے بیٹے سلیم تھے، جن کے 3 بچے تھے، احمد، حمزہ اور شان۔ منجلے بھائی کا نام اسلم تھا، جن کی 1 ہی بیٹی تھی، اس کا نام ملائکہ تھا۔ چھوٹے بیٹے کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیٹی کا نام عصمت تھا اور ان کے 4 بچے تھے، چاروں بیٹے تھے۔ ان کی 1 بیٹی بھی تھی جو فوت ہو گئی تھی۔ عظمت صاحب کی بیوی انہیں بہت جلد داغ مفارقت دے گئی تھی۔ ایسے میں خاندان ٹوٹتا نظر آ رہا تھا۔ انہی باتوں کو سوچ سوچ کر وہ بیمار ہو گئے تھے۔ سلیم کی تیز ترار بیوی انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہی خاندان کو توڑنے والی اہم رکن تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے اور سلیم بیرون ملک چلے جائیں اور پھر واپس پلٹ کر پاکستان میں نہ آئیں، جبکہ عظمت صاحب یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنی نسل کو اپنے سامنے بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسلم کی بیوی نارمل مزاج کی تھی۔ ان کا سازشی ذہن بالکل نہیں تھا۔ وہ اگرچہ زیادہ رکھ رکھاؤ کی عادی نہ تھی، لیکن کہیں سے بھی خاندان کو توڑنے کی بات کبھی بھی نہیں کی تھی۔ تیسرے بیٹے ہارون کی بیوی سب کو جوڑے رکھنا چاہتی تھی۔ ان کی اولاد نہیں تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے خاندان کو ساتھ لے کر چلنے کی۔ لیکن جب گھر کی بڑی بہو ہی خاندان کو توڑے تو کوئی دوسرا لاکھ چاہے وہ جڑ نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ عظمت صاحب جب بیمار ہوئے تو انہوں نے سب کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ وہ تینوں بھائی آپس میں مل کر رہیں، ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں، جس پر سب سے زیادہ اختلاف سلیم کی بیوی رخسانہ کی طرف سے ہوا تھا۔ عظمت صاحب کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کرنے سے روک دیا
और एक हुक्म सादिर किया था जिसे सुनकर सब शशदर रह गए थे। उन्होंने रुखसाना से अपने बेटे हमजा का रिश्ता मलाइका के लिए मांगने का कहा। उसके बाद घर में जो तूफान उठा था वो एक अलग ही दास्तान थी जिस पर दीवानों के दीवान लिखे जा सकते हैं। खैर, असलम की बीवी साजिदा ने भी बहुत एहतजाज किया कि अगर रुखसाना एक नरम दिल दिमाग की मालिक होती तो वो एक सेकंड न लगाती उन्हें अपनी बेटी देने में। लेकिन यहाँ तो मामला जिंदगी भर का था। अजमत साहब ने फैसला सुना दिया था जो पत्थर पर लकीर था और अब बदला नहीं जा सकता था। सलीम की बर्दाश्त भी उसकी तेज तर्रार बीवी के आगे हार चुकी थी। आखिर उन्होंने कई सालों बाद उन्हें तलाक की धमकी दी थी और आखिरकार उन्हें मानना पड़ा था कि वो इस उम्र में तलाक लेकर कहाँ जाती, किसके पास जाती। चुनाचा उन्होंने हमजा के लिए मलाइका की हामी भर ली और आने वाले जुमे को उनका निकाह तय पा गया था। मलाइका का मिजाज बेहद धीमा था। उसने ज़्यादा वक्त अपनी चच्ची सलीमा के पास गुजारा, इसलिए मिजाज भी उनका ही चुरा लिया था। उसने घर वालों के फैसले के आगे सर झुका दिया। यूं आने वाले जुम्मे को उनका निकाह हो गया और अजमत साहब की ख्वाहिश दूसरी सूरत जिद पूरी हो गई तो उन्हें भी एक अनोखा सुकून महसूस हुआ था। उन सब में एक शख्सियत जलते अंगारों पर लौट रही थी। हमजा खुश था, मलाइका खुश थी, लेकिन जो खुश नहीं था वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। वो दिन ब दिन मुख्तलिफ मंसूबे सोचती रहती कि किस तरह ये पेंडू हमजा की जान छोड़ दे और वो लोग यहाँ से दूर चले जाएं। घर एक बड़ा सा महल नुमा था और सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए थे। हर कोई अपने ही पोर्शन में मसरूफ़ होता। ईद बारात हर ही सब साथ इकट्ठे होते और ऐसे में कैसे ये रिश्ते परवान चढ़ सकते थे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अजमत साहब दिल के दौरे के बायस इंतकाल कर गए थे और अब असल दंगल शुरू होना चाहता था। रुखसाना ताई से जब बात की गई कि रुखसती भी करवा ले, अब बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, तो जैसे उनके तन बदन में आग लग गई थी, जैसे किसी ने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। वो ऐसे गुर्राई थी जैसे किसी ने कोई नाजायज़ बात कर दी हो। हमजा चाहता था कि वो मलाइका को रुखसत करवा ले, लेकिन ताई एक दीवार बनकर उनके सामने खड़ी थी। अब सही मायनों में परेशानी शुरू हुई थी। कोई भी उन्हें कायल नहीं कर सका था। वो हर हाल में मलाइका की तलाक करवाना चाहती थी। मलाइका डर सी गई थी। उसके वालिदैन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर तलाक का धब्बा लगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में जब तलाक का धब्बा लगता है तो लड़की अछूत समझी जाती है और फिर सारी ज़िंदगी उस धब्बे के साथ ज़िंदगी गुजार देती है। साजिदा बेगम मलाइका के गम में बीमार रहने लगी थी। उन्हें मलाइका का गम खाए जा रहा था कि उनकी वाहिद इकलौती बेटी शादीशुदा होकर भी बेवा की सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मलाइका भी बहुत हसास बच्ची थी। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। हमजा मलाइका से मोहब्बत तो करता था, लेकिन माँ के आगे बोलने का हौसला उसे भी नहीं था। काले बादल मलाइका की ज़िंदगी पर छाए हुए थे। मलाइका के नाना बीमार थे और साजिदा को अपने बाप को देखने जाना था। साजिदा सलीमा को लेकर गांव के लिए रवाना हो गई। रुखसाना बेगम अपने मेके गई हुई थी। घर में मलाइका रह गई थी। वो अपने पोर्शन में ही थी जब हमजा उसके पास आया था। वो डर गई थी। उसकी आंखों में कोई बहुत अनोखे जज्बात दिखाई दे रहे थे। वो उससे हाल चाल पूछने आया था। आखिर को उनका निकाह हुआ था और वो उसकी बीवी थी। वो कैसे इतना अरसे लाताल्लुक रह सकता था। अब तो अजमत साहब के इंतकाल को भी 10 महीने गुजर चुके थे, यानी उनके निकाह को भी साल होने वाला था। मलाइका ने जब उसे जाने को कहा, लेकिन उस पर जज्बात गालिब थे। इसी जज्बात की रो में बहकर उसे गलती हो गई। रुखसती के बगैर उनमें अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम हो गया था। अब वो लोग सही मायनों में परेशान हुए थे, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। हमजा ने इस बात को राज रखने को कहा, लेकिन ऐसी चीज़ें भी छुपती हैं भला। 1 महीने बाद ही मलाइका बीमार पड़ गई थी
और चेक करवाने पर पता चला था कि वो हामला है। ये खबर घर वालों पर बिजली बनकर गिरी थी। रुखसाना सख्त तैश में आ गई थी। उसने मलाइका को मुगल्लिज़ात बकने शुरू किए कि अल अमान। रुखसाना के मुताबिक ये मलाइका की ही साजिश थी ताकि उसकी रुखसती कर दी जाए, लेकिन अब वो इस गंदगी के गठरे को कभी भी ब्याह कर नहीं लाएंगी। दूसरी तरफ मलाइका के अम्मा अब्बा सख्त नाराज थे। वो पिस कर रह गई थी। किसी ने हमजा से कोई सवाल नहीं किया। आखिर को उसकी भी इस सब में रजामंदी शामिल थी। मलाइका पछता रही थी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिरकार हमजा को अपनी मासूम बीवी पर रहम आ गया और वो उसे अपने पोर्शन में ले आया था। उसे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र थी जो जायज़ औलाद थी उसकी। बस उसने दुनियादारी की एक रस्म नहीं निभाई थी, वरना बाकी तो सब उसूलों के मुताबिक ही हुआ था। मलाइका शरई लिहाज से उसकी बीवी ही थी। रुखसाना ताई आग बगोला हुई थी और सब बस उन्होंने तय कर लिया था कि वो मलाइका को कभी आबाद नहीं होने देंगी। रुखसाना ताई ने बुरा बनकर देख लिया था। अब उन्हें अच्छाई का लिबादा ओढ़कर शिकार करना था। उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत मलाइका को रुखसत करवाने का सोचा। वो मलाइका को घर ले आई और सबके सामने उसे घर की बड़ी बहू की हैसियत दी। मलाइका उनके अंदर इस तब्दीली से बेहद खुश हो गई थी। हमजा ने शुक्र किया था और उसने मलाइका से कहा था कि वो कभी भी अम्मी की बात का कोई जवाब ना दे और हमेशा उनकी खिदमत करे, क्योंकि अम्मी ने भी अपनी दुश्मनी उनके लिए ख़त्म कर दी थी और अपना दिल बड़ा किया था। लिहाजा अब हमजा के बकौल मलाइका का फ़र्ज़ बनता था कि वो उनकी पूजा करना शुरू कर दे। लेकिन चूंकि रुखसाना ताई को कोई भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उनकी फितरत वैसे की वैसी ही थी। वो हमजा की मौजूदगी में मलाइका से बेहद प्यार जताती और हमजा के जाते ही मलाइका से जानवरों से भी बदतर सलूक करती। मलाइका उम्मीद से थी, लेकिन उन्होंने एक दिन भी उसको आराम नहीं दिया था। हमजा के सुबह जाते ही वो पूरा घर बिखेर देती और फिर मलाइका को इस घर को समेटते समेटते शाम हो जाती, यहाँ तक कि वो हलकान हो जाती और उसे दर्द शुरू हो जाता। फिर कहीं शाम को जाकर वो बिस्तर पर लेटती तो हमजा आकर ये देखकर बहुत खुश होता कि रुखसाना ताई तो काम पर लगी हुई हैं और ख़ुद मलाइका आराम कर रही है। हालांकि मलाइका का सुबह से काम कर कर के बुरा हाल हो जाता। किचन के सारे बर्तन, यहाँ तक के धुले हुए बर्तन भी बाहर निकाल के रख देती। पूरे फर्श पर सर्फ और पानी बिखेर देती कि मलाइका उसे झाड़ू से ज़मीन पर घिसेगी और फिर साफ करेगी। उन्हें यह भी ख्याल नहीं था कि वो उम्मीद से है और उन्हीं के पोते या पोती की माँ बनने वाली है। उनके अंदर एक शैतान बस गया था जो किसी तरह भी अपने शर को बाहर निकालना चाहता था। मलाइका खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उसे इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने पोर्शन में अपनी माँ के घर जाकर थोड़ी देर अपने दिल का हाल हल्का कर सके। साजिदा बेगम अपने वालिद की वफ़ात के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और बीमार हो गई थी और चंद महीनों में ही उनका इंतकाल हो गया। अब तो मलाइका सही उनके रहमो करम पर थी। रुखसाना जैसे चाहती उनसे सलूक करती। हमजा को कानो कान इसकी खबर ना होती, बल्कि अगर मलाइका उसे बताना भी चाहती तो हमजा उसे टोक देता। उसे तो बस बीवी बिस्तर तक ही चाहिए होती थी, उसके अलावा उसे बीवी से कोई गर्ज नहीं थी। यहाँ तक कि उसने अभी तक बीवी को किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था। एक दफ़ा मलाइका घर साफ कर रही थी, चूंकि ताई ने सारी मासियों की भी छुट्टी लगा दी थी। मलाइका घर साफ कर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गई थी। लेकिन ताई इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसको दूर से गिरा हुआ देख रही थी, उसे उठाने की जहमत नहीं की थी। उसे देखकर कहा भी था तो इतना कि हमने तो गांव में ही जिंदगी गुजारी है और वहां पानी के मटके भर भर कर अपने कंधे पर लाए हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नाजुक नहीं बने। अब खुद ही तुम उठ जाओ और इस काम को मुकम्मल करके ही कमरे में जाना। मलाइका का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसका दिल चाहा कि अभी के अभी उसे मौत आ जाए
और इस जिल्लत भरी जिंदगी से उसे छुटकारा मिल जाए। वो अक्सर खुदकुशी का भी सोचने लगती, लेकिन फिर सोचती कि ना दुनिया की रहूंगी ना आखिरत की। लिहाजा वो सब्र कर रही थी और अब तक सब्र से ही काम ले रही थी। वो कर भी क्या सकती थी कि माँ बीमार होकर चल बसी थी और बाप बूढ़ा हो चुका था। वो जाती भी तो किधर जाती। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नन्ही सी जान उसके अंदर पल रही थी। ऐसे ही गर्मियों की एक दोपहर थी। वो सहन में झाड़ू दे रही थी। सख्त धूप पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही हो। उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। शदीद गर्मी में काम करते हुए उसके पैरों के तलवे जल रहे थे। उसे शदीद जलन महसूस हो रही थी कि अचानक उसे ज़ोर से चक्कर आए और वो गिर गई। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। रुखसाना ताई अंदर अपने काम में मसरूफ़ थी और उसने मलाइका को ऐसे जैसे मासी समझ कर रखा हुआ था। उसे कोई गर्ज नहीं थी कि वो जिए या मरे। उसे तो बस इतना याद था कि मलाइका और हमजा ने मिलकर उसे रुसवाई की दहलीज पर लाकर खड़ा किया था। मलाइका से उन्होंने एक बैर बांध लिया था कि उन्हें इस लड़की की वजह से तलाक की धमकी दी गई थी। यही वजह थी कि अब वो मलाइका से बेतहाशा नफरत करती थी और उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। उनकी फितरत ही ऐसी थी कि उनके घर वाले भी उनसे बेजार थे, लेकिन उनके आगे एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। इत्तफाक से उस दिन हमजा दुकान से जल्दी आ गया और उसने देखा कि मलाइका सहन में गिरी हुई है, तो वो फ़ौरन से उसके पास आया और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टरों ने ये खुशखबरी सुनाई कि बच्चा तो सलामत है, लेकिन माँ की हालत बहुत ख़तरे में है और खून की बेहद ज़रूरत है। हमजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रुखसाना ताई को फ़ोन किया, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आई थी। उनकी बला से कि मलाइका जिए या मरे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमजा को सलीमा चच्ची को बुलाना पड़ा। उन्होंने अपने भाई से कहकर सारे इंतज़ामात करवाए थे। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर खून का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो मरीज़ा नहीं बच पाएगी। हमजा को खुशी थी तो इस बात की थी कि उसकी औलाद इस दुनिया में तशरीफ़ ले आ रही थी। उसे इस बात का गम नहीं था कि मलाइका मौत की दहलीज पर खड़ी थी। वो माँ के नक्शे कदम पर चल रहा था। मलाइका को इस हाल पर पहुंचाने का असल जिम्मेदार वही था। जो जज्बात की रोह में बहकर उसने नुकसान कर दिया था, वो इसकी बीवी तो थी, लेकिन उससे सलूक जानवरों से भी बदतर किया जाता था। कुदरत को मलाइका पर रहम आ गया और उसकी जान बख्शी गई। उसके यहाँ खूबसूरत सी बेटी ने जन्म लिया। बेटी की पैदाइश का सुनते ही रुखसाना ताई सीने पर हाथ मारकर रोने लगी कि हाय अल्लाह, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मेरे तो 3 बेटे थे, लेकिन मेरे यहाँ बेटी आ गई। ए अल्लाह, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रही। हाय अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया। कल मोही ने मेरे यहाँ जन्म ले लिया। मलाइका ने जब ये सुना तो उसका दिल चाहा कि वो इनका मुंह नोच ले, लेकिन वो ये सब सोच सकती थी, वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। उसने अपनी बच्ची को अपने अंदर और ज़्यादा भेंच लिया था। पहले वो अकेली ज़ात थी, लेकिन अब उसके साथ उसकी एक नन्ही सी जान भी थी, जिसमें उसकी जान बसती थी। हमजा को भी माँ की बातों में आने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने बच्ची को देखा तक नहीं था, बल्कि उसे उठाया भी नहीं था, न उसे प्यार किया था। हॉस्पिटल से बच्ची की खबर सुनते ही चला गया, जैसे किसी की पैदाइश के बजाय किसी की वफ़ात की खबर सुनी हो। उस दिन मलाइका बेहद रोई थी और खून के आंसू रोई थी। उसने अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, तू मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। लेकिन अल्लाह भी उनकी आजमाइश लंबी करता है जो उसमें खड़ा उतरने की पूरी ताकत रखते हैं। अल्लाह किसी को भी उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। मलाइका की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था। उसकी ज़िंदगी वैसे की वैसे ही थी। हाँ, अलबत्ता उस पर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो कोई 1 घंटे काम करती और उसे कोई खाना तक ना पूछता। उसे बासी रोटी खाने को मिलती। दिन ब दिन उसकी अपनी सेहत गिरती जा रही थी, और जब औरत की अपनी सेहत गिर रही हो तो उसका बच्चा किस तरह सेहतमंद रह सकता है।
और मलाइका की बेटी तो अब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इतनी छोटी कि वो तो अपनी ज़रूरत भी इससे अपने मुंह से नहीं कह सकती थी। हमज़ा सुबह काम के लिए निकल जाता और वापस रात को आता, फिर दोस्तों में चला जाता और रात को 3 से 4 बजे से पहले घर नहीं आता था। बस यही उसकी रूटीन थी। जब उसे उसकी ज़रूरत पड़ती तो वो मलाइका को बिस्तर पर बुलाता। इसके अलावा उसे मलाइका की कोई ज़रूरत ना थी। बेटी पैदा करके मलाइका ने अब तो नाकाबिले माफ़ी गुनाह कर दिया। ऐसे ही चल रहा था। उसकी ज़िंदगी ना बदली थी। उसे रहने को एक ऐसा कमरा दिया गया था जो इंतहाई टूट फूट का शिकार था, जबकि पूरा पोर्शन इंतहाई लश पश था। लेकिन इसे सज़ा के तौर पर ऐसा पोर्शन दिया गया था जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार था, और बारिश के मौके पर तो ऐसा बहता था जैसे बग़ैर छत के घर हों। पूरी रात बाल्टियां पानी भर भर कर बाहर फेंकती जाती और फिर अपनी बच्ची को भी देखती। उसकी वजह से उसे ठंड भी लग गई थी और नमूनिया का असर भी हो गया था, लेकिन उसे कौन दवाई ले देता। जब सलीमा चाची को ये सब मालूम हुआ तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और उसे अपने हक के लिए बोलने का कहा। उन्होंने उससे कहा कि अगर हम अपने हक के लिए खुद नहीं बोलेंगे तो कोई हमें कहीं भी चूंटी से ज़्यादा अहमियत नहीं देगा। उन्होंने इससे कहा था कि वो हाथी बनकर इन चूंटियों को खा जाए ताकि उसे दोबारा कभी तकलीफ़ पहुंचाने का भी ना सोच सके। लेकिन मलाइका अंदर से इंतहाई टूट फूट का शिकार थी। वो कभी कभी अक्सर तन्हाई में बैठकर रोती रहती और अपने दादा अज़मत साहब से कहती कि वो क़यामत के दिन उनका गिरेबान पकड़ेगी और कहेगी कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने इसे इस जहन्नुम में धकेला, जबकि उसकी कोई ख़ास वजह भी नहीं थी। उनके इंतकाल के बाद तो ख़ानदान टूट फूट कर बिखर गया था, लेकिन उनको इसकी कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत थी। वो अक्सर अपने आप से बातें करने लग जाती और उसे देखकर लगता कि वो ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही है। उसे अब अपने आप पर तवज्जो देनी भी छोड़ दी थी। वो मलाइका जो इंतहाई खूबसूरत थी अब एक इंतहाई मामूली शक्ल की लड़की लगती थी। उसकी उम्र अभी महज 20 साल थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उसने सदियों का सफ़र तय कर लिया हो। दिन गुजर रहे थे और उसकी बेटी शमा 1 साल की हो गई थी। इसने उसका नाम शमा रखा था, तो वो उम्मीद की किरण थी उसके लिए। लेकिन उसके आने से भी उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिन यूं ही गुजर रहे थे और फिर से वो उम्मीद से हो गई थी। इस खबर को सुनकर उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका दिल चाह रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोए। और उस पर हमज़ा ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वो इसे तलाक दे देगा। इसने आंसू भरी आंखें उठाकर उसे देखा और फिर आसमान को देखा था, जैसे अल्लाह से शिकायत कर रही हो कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना, जब इंसान ने मुझे मिट्टी में रोल दिया। मैं क़यामत के दिन इसका गिरेबान पकड़कर इससे ज़रूर हिसाब लूँगी। और इसे ये खबर सुनाने के बाद वो अंदर चली गई थी कि उसे रुखसाना ताई की आवाज़ आई कि अब कलमोही दोबारा एक दूसरी कलमोही पैदा करेगी और इसी तरह हमारे घर को खा जाएगी। और यही हुआ था। शमा के बाद उम्मीद ने जन्म लिया था और हमज़ा का हंगामा बरपा हुआ था। अब तो हमज़ा ने उसके कमरे में आना तक छोड़ दिया। इन तीनों की हैसियत किसी फ़कीर से कम नहीं थी जो सर्वेंट क्वार्टर में अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। उसे खर्चा पानी देकर एहसान किया जाता। कई रोज़ तो उसके पास दूध के लिए भी पैसे ना होते। वो अपने वालिद के पास जाकर ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। उसके वालिद को जब सलीमा चच्ची से इन सब चीज़ों का इल्म हुआ तो उन्हें बेहद दुख हुआ और इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वो वफ़ात से 1 रोज़ कबल उसके पास आए थे और उसके सामने हाथ जोड़ दिए, उसके कदमों में गिर गए। उसने अपने बाप को इस तरह कदमों में गिरता देखकर बेहद रोई और उन्हें माफ़ कर दिया कि कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उसकी औलाद को दुख या तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन क्या किया जा सकता था। अब तो मलाइका ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया था, हालांकि वो इसकी किस्मत नहीं थी। उसकी किस्मत भी दूसरों के हाथ में लिख दी गई थी।
अब वो किसी से कोई शिकवा नहीं करना चाहती थी। उसकी जिंदगी ने उसे इतने दुख दिए थे कि अब वो जबान से शिकवा करना भी भूल गई थी। वो बस अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचे जा रही थी, यहाँ तक कि मौत उसके दरवाजे पर आ जाए। लेकिन उसे यूं लगता था जैसे मौत भी उससे नाराज हो। इसी दौरान उसे पता चला था कि हमजा की शादी की तैयारियां हो रही हैं और हमजा के लिए दूसरा रिश्ता देखा जा रहा है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत से मेहमानों की घर में आमद हुई और उन्होंने मलाइका और उसकी बच्चियों को मासी की बच्चियों की हैसियत से तारुफ करवाया। मलाइका का दिल चाहा था कि उसके मुंह पर थूक दे और हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर चली जाए, लेकिन पे दर पे अजियतों ने उसे किसी हाल में नहीं छोड़ा था। उसने अब सब्र कर लिया था। हालांकि ये सब्र तो नहीं कहलाता, लेकिन वो क्या कह सकती थी। उसे बेबसी की आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया था। उस रात को चीख चीख कर रोई थी कि दरो दीवार हिल गए थे। उसके बाद वो रोना भूल गई। वो पत्थर की बन गई। अब उसे मजीद नहीं रोना था, न उसे किसी को रुलाना था। बस अब वो ये घर छोड़ना चाहती थी और हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसने सलीमा चच्ची की मदद से एक इंस्टीट्यूट से सिलाई सीख ली। अब इन्हें वैसे भी मलाइका से कोई कर्ज नहीं थी। उन्होंने दोबारा मासी को रख लिया था। वो बस एक कोने में उसे घर दे दिया था। अब उन्हें मलाइका की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमजा की शादी की तैयारियों का उसे घर के अंदर होने वाले रंगो रोगन से अंदाज़ा हो गया था। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसे इससे कोई गर्ज नहीं थी। वो पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और फिर हमजा से तलाक लेना चाहती थी। शमा, उम्मीद भी माशाल्लाह बड़ी हो चुकी थी और उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उन्होंने बचपन से ही अपने पास सिर्फ माँ को देखा था। बाप का तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बाप कौन है। मलाइका ने यहाँ भी उनसे दुश्मनी नहीं की थी और उन्हें अच्छी तरह बता दिया था कि हमजा ही उनका बाप है, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल पे मोहर लगा दी है। यही वजह है कि वो अपनी ही बच्चियों को भूल गया है। मलाइका को अपने साथ की गई एक एक अजियत याद थी, लेकिन वो अपने अंदर मौजूद अजियतों, हसरतों को अपने बच्चों में मुंतकिल नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने सिलाई का काम सीखा और अब वो सिलाइयाँ करने लग गई थी। साथ साथ उसने घर बैठकर पकाने का काम शुरू कर दिया था। हमजा ने बस एक ही अच्छा काम किया था कि उसे खर्चे के मामले में तंग नहीं करता था। अलबत्ता वो खर्चा उसे बच्चियों का दिया करता, जिस पर से वो सेविंग करके अपना एक बिजनेस चलाना चाहती थी। उसके वालिद साहब ने उसके लिए तरके में उनका घर छोड़ा था, जिसे इसने किराए पर चढ़ा दिया और उसके किराए से उसने कमेटियां डाली ताकि वक्त पर बच्चियों के काम आ सके। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी ताकि वक्त पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और कोई हमजा किसी मलाइका का नसीब न बन सके। वो अपने बच्चियों के लिए हमेशा अच्छा सोचती थी और अल्लाह से हमेशा गिड़गिड़ा कर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ मांगा करती थी। हमजा ने उम्मीद और शमा जब 6-8 साल की थी तभी दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बहू कौन थी, कैसी थी, मलाइका ने जानने की कोशिश भी नहीं की। बस उसने उसे एक नज़र देखा था। वो मामूली शक्लो सूरत की लड़की थी, लेकिन अमीर घराने से थी। रुखसाना ताई उसके आगे पीछे फिरा करती थी और उसे घर की मलका की हैसियत हासिल थी। उसके लिए दोबारा मासी भी लगवा दी गई। जो मकाम मलाइका को नहीं दिया गया था वो उससे भी डबल करके हमजा की दूसरी बीवी सबीना को दिया गया। मलाइका रश्क भरी नज़रों से देखा करती थी। अगरचे उसका दिल मर गया था, लेकिन उसने भी तो ऐसे ही ख्वाब बुने थे अपनी आंखों में। आखिरकार वो वक्त आ गया था कि मलाइका अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और उसने हमजा से खुला का मुतालबा कर दिया। हमजा ने बखुशी उसे तलाक दे दी। वो अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, लिहाजा वो दूसरे शहर रिहाइश पजीर हो गई। यहाँ आकर उसे पता चला था कि इस अजियतों, हसरतों और अधूरी ख्वाहिशों ने इसे बहुत सी बीमारियों का गढ़ बना लिया था।
टीबी की मरीजा बन गई थी और इसकी टीबी अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गई थी। शमा के लिए यह खबर किसी कयामत से कम न थी। उसने तो हमेशा माँ बाप के रूप में अपनी माँ मलाइका को देखा था। वो कैसे उसे तरह मरने दे सकती थी। उसने पढ़ाई छोड़ी और माँ का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन तजर्बा ना होने की वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ था। वो माँ का इलाज कराना चाहती थी, लेकिन इसके पास पैसे ना थे। घर का किराया आता था जो नाना से विरासत में मिला था, जिससे घर का गुजर बसर हो जाता था। मलाइका मेरी माँ थी और मैं ही शमा हूँ। ये कहानी मेरी थी और अभी तक जारी है। मेरी छोटी बहन उम्मीद, जो महज 13 साल की थी, स्कूल जाते हुए रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी और जानबर ना हो सकी थी। इस खबर ने मेरी माँ को नढाल कर दिया। वो पहले ही बीमार थी, बहुत सी बीमारियों से लड़ रही थी, लेकिन इस खबर ने उसकी हिम्मत को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। वो बिलाखिर 2 महीने की मुसलसल अजियत के बाद मेरी माँ मलाइका इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैं खुले आसमान तले अकेली रह गई थी। मुझे अपना आप छोटे परिंदे जैसा महसूस होता था, जैसे उकाब अपना शिकार बनाने के लिए दूर से देख लेता है, लेकिन वो परिंदा कुछ भी नहीं कर सकता। दुबक कर एक जगह अपनी मौत का इंतजार करता है। मेरे आंसू सूख गए थे। रो रो कर मैं कहाँ जाती, क्या करती। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। कम उम्र थी, लेकिन माँ को देखते हुए जिंदगी का तजर्बा बहुत हो गया था। इसलिए अब तक अपने आप को बचा बचा कर और सेंध सेंध कर रख रही थी। जब हम दूसरे शहर में आए थे, तब अम्मी ने अपनी एक सहेली बनाई थी, जिंदगी में पहली बार, और उस सहेली ने हमें इतना सहारा दिया था कि हम अभी तक भूल नहीं पाए थे। उनका नाम सलमा था। चंद महीनों बाद वो दूसरे शहर चली गई थी। मेरे पास तो अब कोई सहारा नहीं बचा था। मेरा बाप था, जिसे मेरी तो कोई परवाह ना पहले थी और ना अब थी, तो मुझे क्या पूछता। मैंने सोचा कि मैं सलमा आंटी के पास चली जाती हूँ और उनसे किसी हॉस्टल के इंतज़ाम का कहती हूँ, ताकि मैं नौकरी कर सकूँ और अपना पेट भर सकूँ। अगरचा नाना के घर का किराया इतना था कि मेरी गुजर बसर हो सकती थी, लेकिन मैं पढ़ना भी चाहती थी और जॉब भी करना चाहती थी, ताकि मैं उनमें मसरूफ़ रहूं। मेरे दिमाग में वो सारी सोचें ना आएं, वो सारी अजियतें ना आएं, वो सारे दुख ना आएं जो मेरी माँ ने झेले और दुनिया से रुखसत हो गई। सलमा आंटी के पास आ गई। उन्हें जब पता चला कि अम्मी का इंतकाल हो गया है, तो वो बहुत रोई थी। अम्मी के इंतकाल के बाद अम्मी के लिए मुझे लगता था कि सलमा आंटी से ज़्यादा कोई ना रोया होगा। उन्होंने मुझे बेटियों की तरह अपने घर में रखा, लेकिन मैं खुददार थी, नहीं चाहती थी कि मैं उन पर बोझ बनूं। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे एक हॉस्टल ढूंढ कर दें, जहां मैं पढ़ाई भी कर सकूं और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकूं। मेरे बेहद इसरार पर उन्होंने मेरे लिए हॉस्टल मुंतखब किया, जो इलाके का अच्छा हॉस्टल था। वहाँ की वार्डन सलमा आंटी की दोस्त थी। उन्होंने मुझे एक अच्छा कमरा दिया और साथ में एक अच्छी रूममेट किस्मत से मिल गई थी, जो बहनों की तरह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे पढ़ाई में मदद करती थी। चलो, किस्मत ने कुछ तो मेरे साथ अच्छा किया था। नाना के घर से आने वाले किराए से मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करती थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बन ना सकी थी। मेरा कोई सहारा, कोई अपना ना था जो डॉक्टरी की महंगी पढ़ाई में मेरी मदद करता। बिलाखिर मैंने अपना ख्वाब छोड़ा और नर्सिंग में दाखिला ले लिया। मैं तो नर्सिंग की पढ़ाई के भी अखराजात पूरे नहीं कर पा रही थी। इसी मकसद से मुझे हर हाल में जॉब करनी थी। मैंने सलमा आंटी से बात की। उन्होंने अपनी दोस्त, जो हॉस्टल की वार्डन थी, उससे मेरी बात की कि मुझे रात के वक्त या शाम के वक्त किसी पार्ट टाइम जॉब की इजाज़त दे दें। उनके बात करते ही वार्डन ने मुझे ऑफिस में बुलाया। उन्होंने ना सिर्फ इजाज़त दी, बल्कि मेरे लिए एक काम भी देख रखा था। काम की नौयत कैसी थी, ये वहाँ जाकर ही पता चल सकती थी। बकौल उनके, उन्हें अपनी एक दोस्त के तवस्सुत से नौकरी का पता चला था, इसलिए वो मुझे बता रही थी।
मैंने सुनकर उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे एड्रेस लेकर निकल पड़ी। बकौल उनके सैलरी अच्छी खासी है और काम भी महज 2-3 घंटे का ही है। मुझे खुशी हुई थी कि उन्होंने सलमा आंटी की बात मानकर मुझे इजाज़त दे दी थी और काम भी ढूंढ कर दिया था। मैं उसी दिन एड्रेस लेकर उस पते पर पहुंच गई। गर्मी बहुत थी, हब्स बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने कल पर नहीं डाला, बल्कि उसी दिन मैंने उस जगह पर जाने का सोच लिया। मैं एड्रेस पर पहुंच गई और कैसे पहुंची ये अलग कहानी थी, लेकिन आखिरकार मैं पहुंच गई थी। 2nd फ्लोर पर मुझे जाना था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन ज़माने ने अब थोड़ा बहादुर बना दिया था, तो बज़ाहिर डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने दिल को तसल्ली दी थी। यही वजह थी कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि 2nd फ्लोर के लाल गेट पर मुझे रुकना था। मैंने बेल बजाई, किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। मैं अंदर आ गई। मुझे दूसरे कमरे में बिठा दिया गया था। पूरे घर में दवाइयों की बू फैली हुई थी और उस बू के साथ एक अजीब और भी बू फैली हुई थी, जिसे सूंघते ही मुझे खांसी आना शुरू हो गई। थोड़ी देर में नौउम्र लड़की अंदर आई। उसने मुझे कहा था कि यहाँ मौजूद एक अंकल और एक आंटी के लिए उन्हें केयर टेकर की ज़रूरत थी, जो सिर्फ 2 घंटे संभाल सके, क्योंकि पूरी रात और पूरा दिन तो उन्हें इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता था और वो महज दिन में 2 घंटे ही जागते थे। लिहाजा उन्हें 2 घंटे में मुकम्मल तवज्जो करने के साथ साथ इंजेक्शन और दवाइयों वगैरह का भी ध्यान रखना था। ये सिर्फ 2-3 घंटे का काम था, तो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं ये काम कर लूँगी। मैंने उसे कहा मैं पहले अंकल और आंटी को देखूँगी, चूँकि नया काम था। नर्सिंग के साथ साथ मैंने कभी किया नहीं था, इसलिए मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने दूसरे कमरे में जाकर अंकल आंटी को देखना चाहा था। उस लड़की ने मुझे इजाज़त दी। मैं जैसे ही दूसरे कमरे में गई तो बेइख्तियार दरवाजे को थामा। मेरे सामने कौन था? मेरी आंखों को यकीन नहीं आया था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं यहीं बैठ जाऊं और बैठती चली गई। मुझे लगा मेरे पैरों में जान बाकी नहीं रही। मैंने बहुत बमुश्किल दीवार का सहारा लिया और आगे आई। जिंदगी में किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। अंकल आंटी कौन थे वो मैं अच्छी तरह से जान गई थी। वो अंकल आंटी कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी और मेरे अब्बू ही थे। मेरी वही दादी जिसने मेरी माँ को कब्र तक पहुँचा दिया, और मेरा वही बाप जिसने हमें इस हाल तक पहुँचाया था। ये मेरी वही दादी थी जिसने अपनी अना में कितनी जिंदगियों का नुकसान कर दिया, और ये मेरा वही बाप था जिसके कानों के कच्चा होने ने कितनी जिंदगियों को ख़राब कर दिया। मेरा दिल चाहा कि मैं धाड़े मार मार कर रोऊं, लेकिन मेरा दिल खामोश रहा, मुकम्मल खामोश। उनकी हालत देखकर मुझे लग रहा था कि मेरी माँ को सुकून मिल गया होगा। हालांकि मेरी माँ ने किसी को बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन क्या ऊपर वाला इंसाफ नहीं करता? करता है, वो ज़रूर करता है। वो ऐसा इंसाफ करता है कि फिर देखने वाला देखता ही रह जाता है। कुदरत ने भी क्या खेल खेला था कि उनकी देखभाल के लिए उन्हीं की नस्ल से एक शख्स को उनके लिए मुकर्रर करने वाला था। रुखसाना ताई, जो बहू बहुत चाह से ब्याह कर लाई थी, उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने शरीफ घर की शरीफ बेटी को मट्टी में रोल दिया था, इसलिए उनकी दूसरी बदमाश बहू ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने एक बेटा पैदा करके उनकी ज़ात पर एहसाने अजीम किया था कि लोग उसे पूजने लगे थे, लेकिन उस बहू ने इनका जीना दो भर कर दिया था। जब अपने आशना के साथ मिलकर उसने इन दोनों को नींद की दवाइयाँ देना शुरू की थी, वो इन दोनों यानी रुखसाना ताई और मेरे वालिद यानी हमज़ा को दवाइयों के ज़ेरे असर रखती। उन्हें इसकी किसी प्लानिंग की समझ नहीं आई थी और वो उनके साथ 4 हाथ कर गई थी। उसने इनका इतना बड़ा घर हथिया लिया था और इन दोनों को बेहोश करके कहीं फेंकवा दिया था,
और अपने आशना और बच्चे के साथ, जो उसी आशना का था, भाग गई और इनके मुंह पर कालक मल गई थी। ये अल्लाह का इंसाफ था। अब वो दोनों उन दवाइयों के इस तरह आदी थे जैसे नशई नशे का आदी होता है। मेरे चचा अहमद ने उन पर रहम खाकर उन्हें इस घर में रखा था और इनके लिए नर्स का इंतज़ाम करना चाहते थे। मेरे सामने मकाफाते अमल का एक पूरा जीता जागता किरदार था, जो होश व खिरत से बेगाना, सिर्फ अपने आप में मगन था। उसे आस पास का कोई होश नहीं था। मेरे सामने ऐसी बीमार बूढ़ी औरत थी जिसकी हड्डियां भी उसका साथ छोड़ गई थीं, और वो बिस्तर पर पड़ी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मौत भी उनसे लका छुपी खेल रही थी। मैं मोड़ी थी। आंसू मेरी आंखों से निकलकर गाल पर बह निकले थे। ये कुदरत का इंतकाम था जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। मैं चुपचाप कुछ भी कहे बगैर वहां से निकल आई थी। मेरा दिल खाली था, बिल्कुल खाली और वीरान। हाँ, अलबत्ता कुदरत के निज़ाम पर मेरे दिल में सुकून भर गया था। आज पहली बार माँ को याद करके आंखों में आंसुओं के बजाय मुस्कुरा कर याद किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।